students, this is Manjinder. In this COVID-19 time, please take care of yourself, stay home, stay safe, right? Okay, in the last lecture we have discussed about total internal reflection. In today's lecture we will discuss about critical angle. Basically last lecture में भी हमने critical angle discuss किया था. Today we will describe critical angle mathematically, right? सबसे पहले हमारे पास two mediums हैं. Let this one is a denser medium and this one is a rarer medium. Fine. And this is the normal, right? This is the normal. ठीक है जी. Situation ले लो. If I is less than C, यहाँ पे जो angle of incidence है that is less than the critical angle. अगर हमारे पास angle of incidence critical angle से less होएगा तो क्या होएगा? Light will get refracted in the second medium and it will bend away from the norm. ठीक है, ऐसी जानी चाहिए थी but denser medium to rarer medium गई है, वो away from the normal bend हो गई है and angle of refraction is R. ठीक है. If I is equals to C, अगर हमारे पास angle of incidence जो है light ray का वो equal to C है, I is equals to C, light will grazes over the surface of two mediums and the angle of refraction will be equal to 90 degree and this phenomena is called grazing emergence. इस phenomena को कहते हैं grazing emergence. Fine. Now if angle of incidence is greater than the critical angle then total internal reflection will take place, right? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगी. दैट मीन्स जो हमारी लाइट रे है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल्स टू आर. अगर यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या होएगा? जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड होंगे. That means angle of incidence is equals to angle of reflection, that is R. Fine. यहाँ से क्या हुआ? क्या हमारे पास कंफ्यूजन आया कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है दैट मीन्स हमारे पास क्या होएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल गेट टेक्स प्लेस. फाइन. अब देखो अब क्या होएगा हमारे पास? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? दो मीडियम है. दिस इज अ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स. दिस इज द नॉर्मल. वन मीडियम I. Angle of incidence is I. Fine. This one is a denser medium. This one is a rarer medium. First medium is denser medium. Second medium is rarer medium. Let the refractive index of first medium is mu1 and let the refractive index of second medium is mu2. Fine. अब हमारे पास क्या होएगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस C के इक्वल है, लाइट विल ग्रेजेस ओवर द सरफेस ऑफ टू मीडियम्स एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी. देखना कैसे आएगी. लाइट गई फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम. Fine. This will equal to, according to Snell's law, sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. Now, if angle of incidence is equals to critical angle, angle of refraction is equals to 90 degree. This condition. Fine. तो क्या आएगा हमारे पास? 1 mu2 is equals to sine of C upon sine of 90 degree. Now, what is sine 90? Sine 90 is 1. So, this is equals to sine of C. So, 1 mu2 is equals to sine of C. Basically second medium अगर हम इसका इनवर्स कर दें 2 mu1 that will be equal to 1 upon sine C. What is the second medium? Second medium is a rarer medium. So rarer medium mu, first medium is a denser medium, 1 upon sine C. So this is the expression to find out the angle of
critical angle, basically to find out the critical angle, right? So R mu D, refractive index of denser medium with respect to the rarer medium, that will be equal to 1 upon sine of C. This is the expression to find the value of critical angle. Fine. Now ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अब हमारे पास अगर रेयरर मीडियम एयर हो और डेंसर मीडियम इट मे बी ग्लास, वाटर और एनी अदर डेंसर मीडियम लाइक डायमंड. फाइन. अगर हमारे पास A mu W राइट करें, दैट मीन्स refractive index of air with respect to water, that will be equal to 4/3, that is equals to 1.3 basically, 33, right? A mu G, that is equals to 2/3. Fine. And A mu diamond, that is equals to 2.4 basically. फाइन. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर तो हमारे पास 1.33 है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम C का एक्सप्रेशन देखें दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A म्यू W, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4/3. C इनवर्स C की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यूजिंग कैलकुलेटर. You will get the value of A mu W is equals to 50 degree approximately for water with respect to air. Fine. अगर हम similarly A mu G इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लें that will be equal to 42 degree approximately. एंड अगर इसके लिए फाइंड आउट करें वैल्यू दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25 डिग्री. ठीक है जी. ऐसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल की फॉर डिफरेंट मीडियम्स, राइट. यहां से हमारे पास एक कंफ्यूजन आ गया. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो कम होती जा रही है. दैट मीन्स अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन है म्यू का वो क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. हमारे पास यहाँ पे एक कंक्लूजन आ गया कि म्यू अगर कम होता जाता है तो जो C है वो इंक्रीज होएगा. अगर म्यू इंक्रीज होता है तो C डिक्रीज होएगा. फाइन. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, कम है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी. क्लियर बच्चा. नाउ हम देखेंगे जो एक्सप्रेशन है C का क्रिटिकल एंगल का वो किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है. ठीक है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे C की वैल्यू डिपेंड करती है. फैक्टर्स ऑन विच C डिपेंड्स. राइट. नाउ फर्स्ट तो हमें पता ही है किस किस पे डिपेंड करती है. एज म्यू इंक्रीजेस C डिक्रीजेस. ये तो हमें पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो गया तो C डिक्रीज हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है? डेंसर मीडियम का. ठीक है. रेयरर का कम होता है. अगर मीडियम डेंसर होता जाएगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है जी. नाउ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज वो टेम्परेचर गेन कर लेते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उन्होंने फटाफट मॉलिक्यूल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अगर उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई है दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर वो दूर जाना स्टार्ट हो गए तो मीडियम क्या हो गया? रेयरर हो गया. ठीक है. अगर रेयरर मीडियम हो गया तो म्यू क्या हो गया? उसका डिक्रीज. क्योंकि हमें पता है कि रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है. ठीक है. अगर म्यू डिक्रीज हो गया तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज.
तो बेसिकली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि एज टी इंक्रीजेस सी ऑल्सो इंक्रीजेस, जिसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ गया क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नाउ एज लैम्डा इंक्रीजेस, हमें पता है कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ पे क्रिटिकल एंगल कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो अगर इंक्रीज होती है, दैट मीन्स अगर वेवलेंथ ज्यादा है, इस मीडियम की वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, टू वेव्स कंसीडर कर लो, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम वाइब्रेट करेगी, जिसकी वेवलेंथ कम है वो क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो गई तो क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, दूर दूर हो गए, दैट मीन्स जो म्यू हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से कम वाइब्रेशन होगी, कम वाइब्रेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स कम मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स कम मूव करेंगे तो हमारे पास म्यू क्या होएगा, इंक्रीज। अगर म्यू इंक्रीज हो गया क्रिटिकल एंगल क्या होएगा, डिक्रीज। म्यू डिक्रीज हो गया तो क्रिटिकल एंगल क्या होएगा, इंक्रीज। दैट मीन्स अगर इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, दैट मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है। C1 is less than C2. So as lambda increases, C decreases. Fine. So these are the three factors on which the critical angle depends. Fine. Now we will study some examples of total internal reflection. दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बारे में हमने स्टडी कर लिया कि उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए हम लोग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने सारा पता कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि डेली लाइफ में हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिराज, ठीक है। नाउ व्हाट इज मिराज, बेसिकली मिराज होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम कई बार रोड पे जाते हैं, कार में जाते हैं तो हमें दूर से दिखाई देता है कि वहां पे रोड पे पानी है, बट एक्चुअली वहां पे पानी होता नहीं है। सो बेसिकली वो हमारी दैट इज बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन होती है, ठीक है। फाइन, वहां पे एक्चुअली में पानी होता नहीं है बट हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है वो देखो, मिराज जो है बेसिकली वो डेजर्ट्स में होता है। डेजर्ट्स में क्या होता है, हॉटनेस होती है सरफेस के पास, ठीक है। देखो अगर सरफेस के पास हॉटनेस होगी तो हमारे पास क्या होएगा, लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है, ठीक है जी, और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं एयर की। हमें पता है कि एनवायरमेंट में क्या होता है, एयर होती है, ठीक है। एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। यहां पे सन है, सन से हमारे पास लाइट आई, सन से लाइट गई ट्री के पास, ट्री से रिफ्लेक्ट कर गई इस लेयर में, ठीक है। अब इस लेयर में क्या होएगा, कौन सा मीडियम है, यहाँ पे कुछ नहीं पता, ठीक है। पहले हम मीडियम देखते हैं, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, हमें पता है सरफेस पे के पास जो एयर है वो क्या होती है, हॉट, ठीक है। जहां पे हीट होगी वहां पे मीडियम कौन सा होएगा, रेयरर होएगा, ठीक है जी। जहां पे रेयरर मीडियम होएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर क्या होती जाएगी, कूल होती जाएगी, ठीक है। अगर एयर कूल होती जाती है ऊपर जाते कूलर, ठीक है, तो मीडियम क्या होता जाएगा, डेंसर, ठीक है। कूल एयर है, डेंस हो गई, नीचे हॉट एयर है तो हमारे पास क्या हो गया, रेयर हो गई, ठीक है।
अब हमें पता है कि लाइट सन से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई है। अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई है, जैसे जैसे नीचे आ रही है, दैट मीन्स डेंसर टू रेयर मीडियम वो एंटर कर रही है। ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम अगर वो जाएगी, दैट मीन्स वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएगी। ठीक है, इस लेयर में जो नॉर्मल है वहां से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी लाइट। नेक्स्ट लेयर में फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से बेंड होगी। ठीक है जी, यहाँ पे फिर से नॉर्मल आया, वो फिर से बेंड हो गई। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, वहां पे उस लेयर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ह्यूमन आई, दैट मीन्स यहाँ पे है ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जब ह्यूमन आई में लाइट जाएगी, अब हमें पता है कि लाइट ऑलवेज हमें लगता है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, दैट मीन्स जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आई में जाती है, तो वो उसको लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ऐसे ऐसे यहाँ से आ रही है। दैट मीन्स इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ट्री की इमेज बन गई है यहाँ पे। फाइन, दिस इज कॉल्ड मिराज। हमें रोड्स पे पानी कैसे दिखाई देता है, वहां पे क्या होता है, सेम प्रिंसिपल होता है क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स के साथ स्ट्राइक करके लाइट क्या होती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो हमें क्लाउड्स की जो इमेज है वो नीचे दिखाई देती है और वो हमें पानी की तरह अपीयर होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मिराज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है। राइट, नाउ there are some more examples of total internal reflection in our daily life. That is, second example, which is very important, that is brilliance of diamond. फाइन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड है वो स्पार्कलिंग कैसे करता है, वो इतना ज्यादा शाइन कैसे करता है। ठीक है, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 के नियर अबाउट होता है। ठीक है, उसका जो क्रिटिकल एंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो 25 डिग्री के नियर अबाउट होता है। डायमंड की जो लेयर्स हैं वो ऐसे सेट करी होती हैं कि वहां पे जो लाइट इंसिडेंट होती है एक्सटर्नली, ठीक है, वो इस एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट हो, ताकि जो लाइट है वो अंदर जाके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, वो डायमंड जो होता है उसके अंदर जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शंस होती रहती हैं, अंदर लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है, उसकी वजह से लाइट अंदर अंदर ही दिखाई देती है, उसकी वजह से वो शाइन करता है। फाइन, सो जो डायमंड है वो भी TIR पे बेस्ड है। ठीक है जी, तो नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं, ये क्या होता है, हमारे पास फाइबर्स होती हैं, पाइप्स होती हैं बहुत ही कम डायमीटर की, अप्रोक्सीमेटली इनका डायमीटर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के नियर अबाउट, बहुत कम डायमीटर होता है, बहुत ही थिन पाइप्स होती हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 के नियर अबाउट होता है इंटरनल वाला। इसकी कोटिंग कर दी जाती है एक ऐसे मटेरियल के साथ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो इससे कम, दैट मीन्स लेट इट बी 1.48। इससे कम हो गया, दैट मीन्स अंदर वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम होएगा। बाहर वाला मीडियम जो होएगा वो क्या होएगा, रेयरर मीडियम होएगा। ठीक है जी, अब क्या होएगा, अगर हमारे पास लाइट जाएगी, ये अंदर वाला लाइट बाहर से एंटर कर गई, इधर से अंदर वाला मीडियम क्या होएगा, डेंसर, आउटर लेयर क्या है, रेयरर, डेंसर टू रेयरर गई एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे लाइट को हमने स्ट्राइक करवाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द
क्रिटिकल एंगल। अगर ग्रेटर होएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगी, TIR हो जाएगी, अंदर अंदर लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एंड में लाइट रिसीव होती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो के, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो के हमें सिर्फ एंड में जाके लाइट रिसीव हो जाती है, सिग्नल रिसीव हो जाता है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास यूज होती हैं ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को, जैसे टेलीफोनिक सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उनको एंगल, इंसिडेंस एंगल एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल लाइट को स्ट्राइक करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से TIR हो के हमारे पास एंड में विदाउट मच लॉस ऑफ इंटेंसिटी जो सिग्नल्स है वो रिसीव हो जाते हैं। फाइन। आपने देखा होगा एक मार्केट में शोपीस भी आता है जहां पे ऊपर बहुत सारी फाइबर्स लगी होती हैं, ऐसा होता है वो। बेसिकली फाइबर्स लगी होती हैं, पतली पतली वायर्स होती हैं, बहुत थिन वायर्स होती हैं, जिनके सिर्फ टिप पे लाइट दिखाई देती है। बेसिकली वो भी TIR पे बेस्ड होती है। कैसे? हमारे पास यहां से लाइट गई, बीच में बल्ब लगा होता है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से लाइट गई, जब लाइट जाती है वो एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जाती है, सारी फाइबर्स के बीच में इंटरनली रिफ्लेक्ट करके एंड में जाके हमारे पास लाइट रिसीव हो जाती है। वहां पे हमारे पास लगता है कि सिर्फ टिप पे लाइट आ रही है। ठीक है, ये भी TIR पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। लाइट, वो मैंने आपको बताया, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए, लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए, इवन टेलीफोनिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए, सब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज होती है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।